حمایت یافتہ ارسلان احمد نے 3173 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ لاہور NA 129 ضمنی الیکشن 50 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ میاں نعمان 4667 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ارسلان احمد نے 3173 ووٹ حاصل کیے۔ تو ناظرین اب رخ کرتے ہیں PP 115 کی جانب، جہاں کے 15 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں۔ لیگی امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 2913 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں، اور آزاد امیدوار ملک اصغر 193 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 153 ووٹوں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں PP 115 سے، جہاں کے 15 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق لیگی امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 2913 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ آزاد امیدوار ملک اصغر 193 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 153 ووٹوں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ حلقہ ہے PP 115، اور اس کے بھی غیر سرکاری نتائج صرف 15 پولنگ سٹیشنز کے ابھی سامنے آئے ہیں۔ ان کے مطابق لیگی امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 2913 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ آزاد امیدوار ملک اصغر 193 ووٹوں سے دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 153 ووٹوں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایک اور صوبائی حلقہ PP 116، جہاں کے 4 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 موصول ہو چکے ہیں۔ یہاں کے نتائج اب تک جو سامنے آئے ہیں اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا احمد شہریار 834 ووٹ لے کر ہیں آگے، اور ان کے مد مقابل آزاد امیدوار اصغر علی قیصر نے حاصل کیے ہیں 192 ووٹ، اور وہ یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ووٹوں کی جیسے جیسے گنتی ہو رہی ہے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور 24 نیوز اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے صحافتی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ تک تمام تر نتائج پہنچا رہا ہے۔ یہاں کے 4 پولنگ سٹیشنز 116 PP حلقہ ہے، اور اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا احمد شہریار 834 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہے۔ PP 115 کے 16 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 3174 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ آزاد امیدوار ملک اصغر 203 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ PP 115 کے 16 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 3174 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ملک اصغر 203 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ PP 115 کے 16 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج: نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 3174 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ آزاد امیدوار ملک اصغر 203 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں PP 115 کے 16 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے آ چکے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 3174 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ آزاد امیدوار ملک اصغر 203 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ PP 115 کے 16 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج آ چکے۔ نون لیگ کے امیدوار میاں طاہر پرویز جمیل 3174 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ آزاد امیدوار ملک اصغر 203 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ آزاد امیدوار احمد طارق چیمہ 162 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو ناظرین اب رخ کرتے ہیں NA 185 کی جانب۔ ڈیرہ غازی خان کا یہ حلقہ ہے، جہاں کے پولنگ سٹیشن 222 کا غیر حتمی نتیجہ سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کے سردار قادر خان لغاری 236 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا 58 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، اور یہ کافی لیڈ ہے یہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے پاس۔ NA 185 اور پولنگ سٹیشن ہے 222۔ غیر حتمی نتیجہ: نون لیگ کے سردار قادر خان لغاری 236 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا 58 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ضمنی انتخابات اور ان کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر سرکاری نتائج آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں NA 185 سے، اور پولنگ سٹیشن نمبر ہے 222۔
नून लीग के सरदार कादिर खान लगारी 236 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 58 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। यहां पर दोनों इत्तेहादी और हुकूमती पार्टी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है। और अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो इस हलके से और पोलिंग स्टेशन से 236 वोट लेकर पहले नंबर पर सरदार कादिर खान लगारी है। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करेंगे। हल्का है कौमी असम्बली का NA 96। यहाँ के 21 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर ने 4606 वोट हासिल किए हैं और वो आगे हैं। और उनके मद्दे मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर ने 918 वोट हासिल किए हैं, यूं वो दूसरे नंबर पर हैं। ये हल्का है कौमी असम्बली का NA 96। NA 96 जहाँ के जो नताइज सामने आए हैं वो 21 पोलिंग स्टेशन के हैं और ये गैर सरकारी नताइज हैं, जिनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून यहाँ से बरतरी लिए हुए है। और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल बदर ने 4606 वोट अभी तक हासिल किए हैं। उनके मद्दे मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर ने 918 वोट हासिल किए हैं। तो नाज़रीन, ये आपको बताएं कि लाहौर NA 129 के 69 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा भी सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नोमान 6793 वोट लेकर आगे हैं। PTI हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 4468 वोट हासिल किए हैं और वो इस वक्त दूसरे नंबर पर है। लाहौर का हलका NA 129, इस हलके को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है और इस हलके के 69 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। इसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां नोमान 6793 वोट लेकर आगे है। PTI के हिमायत याफ्ता अरसलान अहमद ने 4468 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर है। PP 116 के साथ पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार 1323 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 322 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। PP 116 के साथ पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार 1323 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 322 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PP 116 के साथ पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। लीगी उम्मीदवार राना अहमद शहरियार 1323 वोट लेकर लीड कर रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 322 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी बिल्कुल, ये PP 116 सूबाई हल्का है। यहाँ के 7 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। यहाँ से बरतरी लिए हुए हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार और उन्होंने हासिल किए हैं अब तक की गिनती के मुताबिक 1323 वोट। और उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर, जिनके अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक जो वोट हैं वो हैं 322, वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ के जो फॉर्म 45 मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक ये 7 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें जो वोट कास्ट किए गए हैं उनके नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ को बरतरी है इस हल्के में और 1323 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार आगे हैं, पहले नंबर पर हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर, जिन्होंने हासिल किए हैं 322 वोट और यूँ वो दूसरे नंबर पर हैं। तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इस हल्के से यानी PP 116 से पंजाब का ये हल्का है, यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार बरतरी लिए हुए हैं, वो आगे हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं हरीपुर NA 18 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हरीपुर 68 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौसूल हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर पीछे हैं और हरीपुर NA 18 के गैर हतमी ये नताइज है और 68 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौसूल हुए हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अपने नाज़रीन को हरीपुर NA 18 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं और ये है 68 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के
नताइज जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर पीछे हैं। तो आपको हरिपुर के इस हलके के मुतालिक बता रहे हैं और ये है NA 18 और गैर सरकारी नताइज आए हैं सामने 68 पोलिंग स्टेशंस के। और फॉर्म 45 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर इस वक्त वो आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर पीछे हैं। हरिपुर NA 18 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हरिपुर 68 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मौसूल हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 17,627 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान 9,461 वोट लेकर पीछे हैं। एक और हलका है मुजफ्फरगढ़ से PP 269, जहां के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताज सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक यहां से बरतरी लिए हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी, जिन्होंने हासिल किए हैं 10,511 वोट। और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार इकबाल पताफी, जिन्होंने 6,456 वोट हासिल किए हैं, यूँ वो दूसरे नंबर पर हैं। तो अभी तक यहाँ के 24 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा सामने आया है। हल्का है PP 269 मुजफ्फरगढ़ का, यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज की बजाय पीपल्स पार्टी जो है वो बरतरी लिए हुआ है और उनके उम्मीदवार हैं मियां अलमदार कुरैशी, जिन्होंने हासिल किए हैं 10,511 वोट। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार हैं सरदार इकबाल पताफी, जिन्होंने हासिल किए हैं 6,456 वोट और वो दूसरे नंबर पर हैं। तो यूँ आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ का हल्का है PP 269, जहां के 24 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। मुजफ्फरगढ़ PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। आपको बताते चलें कि मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। मुजफ्फरगढ़ में PP 269 के 24 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी 10,511 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल पताफी 6,456 वोट के साथ पीछे हैं। नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ का हल्का है PP 269, यहाँ के 24 पोलिंग स्टेशंस के जो गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी बरतरी लिए हुए हैं। 10,511 वोट अब तक की गिनती के मुताबिक उन्होंने हासिल किए हैं। अब रुख करते हैं साहिवाल की जानिब। NA 143 के 55 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा और नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 17,989 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 1,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। साहिवाल से आपको अपडेट कर रहे हैं और ये है NA 143, जहां के 55 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है और नून लीग के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 17,989 वोट लेकर आगे है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 1,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। और काफ़ी लीड है इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद तुफैल जट के पास। और साहिवाल का ये हल्का है NA 143, जहां पर 55 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा भी आ चुका है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ चुका है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा आउट हो चुका। नून लीग के सुल्तान रांझा 2,687 वोट लेकर आगे हैं।
जबकि आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नतीजे सामने आने का सिलसिला जारी है। हल्का सरगोदा का PP 73, जहां के 9 पोलिंग स्टेशंस का अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार सुल्तान रांझा 2687 वोट लेकर है आगे, जबकि उनके मद्दे मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार हारिस रांझा 300 वोट लेकर हैं दूसरे नंबर पर। और यूं 9 पोलिंग स्टेशंस का अभी तक जो नतीजा सामने आया है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज को यहां से बरतरी हासिल है। सरगोदा का ये हल्का है PP 73, और यहां के भी जैसे जैसे गिनती का अमल मुकम्मल हो रहा है तो नतीजा आने का सिलसिला जारी है। सरगोदा हल्का PP 73 के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ चुका है। नून लीग के सुल्तान रांझा 2687